Hi everyone, I welcome you all to my YouTube channel. Guys, my name is Abhishek and एक बार फिर से I'm in front of you with yet another super amazing informative lecture of mathematics. और आज का जो lecture है इसमें I'm going to discuss about the even and odd function. देखिए समझने के लिए इट इज़ वेरी सिंपल एंड बट अगर क्वेश्चंस की बात करें तो कभी कभी क्वेश्चन आपको परेशान कर सकते हैं. सो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा, कोई इतनी लेंथी वीडियो नहीं बनेगी एंड प्लस इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू बिकॉज इवन ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट हम लोग इंटीग्रेशन में भी यूज़ करते हैं, जहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर वी हैव यूज्ड अ प्रॉपर्टी ऑफ द लिमिट्स, जहाँ पर अगर फंक्शन ऑड है तो टोटल इंटीग्रल जो है वो जीरो हो जाता है. तो चलिए लेट्स स्टार्ट. The topic is even and odd function. तो सबसे पहले समझते हैं लाइक व्हाट डू वी मीन बाय इवन एंड ऑड फंक्शन. इवन और ऑड फंक्शन का मतलब क्या है? तो इफ आई हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन f of x, let's say y is equals to f of x, and if I replace x with minus x, तो अगर f of minus x इक्वल टू आता है f of x, तो इट इज इवन फंक्शन इन इट्स डोमेन. वो जो फंक्शन है अपने ही डोमेन के अंदर इवन फंक्शन होगा. जो भी उसका स्पेसिफिक डोमेन गिवन होगा, चाहे वो रियल नंबर हो, चाहे वो कोई स्पेसिफिक इंटरवल हो, उसमें इट विल बी अ इवन फंक्शन. वहीं पर अगर f of minus x is minus of fx है, तो that is odd function in its domain. Odd function in its domain. In its domain. So remember that even function when f of minus x is f of x, odd function when f of minus x is f of x. If I take some examples like f of x is equals to x square. So when I taking minus x, it will be minus x square, and which eventually becomes x square, which is fx. So that means that f of x is an even function. If I take one more example like f of x is equals to x cube, that means f of minus x is equals to minus x cube, which is minus of x cube minus f of x. So जहां पर आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं और फंक्शन जो है बिल्कुल सेम आ जाए तो वो इवन फंक्शन है, लेकिन अगर नेगेटिव बार आ रहा है तो ऑड फंक्शन है. और एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं तो जैसे f of x अगर मैं बात करूं लेट्स से sin x, but when I take f of minus x it will be minus sin x. तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, किसके इक्वल है? माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल है. माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल है. उसी तरीके से एफ ऑफ एक्स अगर मेरे पास cos x है तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आ जाएगा? एफ cos of minus x, which comes out to be cos x, and that is equal to f of x. So cos x is an even function, sin x is an odd function. Apart from these two, there are still some functions which are neither odd nor even. मेरे पास कोई भी फंक्शन है fx is equals to cos x plus x cube. Now if I replace it with like f of minus x, so that is cos of minus x plus minus x cube, and that too becomes cos x minus x cube. So I cannot take negative as common from this, because if I take negative as common then it will become minus cos x plus x cube, which is not equal to this. So in both the cases, whether I am taking negative as a common or not, this value could not be equal to this. So this function is neither odd nor even. ना तो ये odd है ना ही ये even है. चलिए one more. I want to check fx e raised to the power x plus e raised to the power minus x e raised to the power x minus e raised to the power minus x. I want to check this.
सो व्हेन आई रिप्लेस x विद माइनस एक्स, जब मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा या आएगा e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय e रेज टू द पावर माइनस एक्स माइनस e माइनस ऑफ माइनस एक्स, एंड दैट टू विल बिकम्स e raised to the power minus x plus e raised to the power x, e raised to the power minus x plus e raised to the power what? X. E raised to the power minus x. Sorry, this will be minus itself. Now in numerator we have the positive sign. Numerator में हमारे पास positive sign है, क्योंकि positive sign है तो आप उसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन नेगेटिव समझिए थोड़ा सा, यहां पर जो नेगेटिव है वो माइनस एक्स के सामने, बट यहाँ पे नेगेटिव प्लस एक्स के सामने, तो मुझे नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा। और जब मैं नेगेटिव कॉमन लूंगा माइनस एक्स माइनस, तो मेरे पास बचता है e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स, e रेज टू द पावर x माइनस e रेज टू द पावर माइनस एक्स। सो यहां से मैं कह सकता हूं दैट f ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ एफ एक्स, सो दैट इज अ ऑड फंक्शन। We got an odd function। जहां पर आपने x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया तो आपको मिला एक odd function। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट एग्जांपल इज fx is equals to 1 plus x plus x square, 1 plus x plus x square plus 1 minus x plus x square। Again what we have to do, we have to check whether it is an even or odd function। तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, बताइए मुझे, टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में whether it is an even or odd, whether it is an even or odd function। तो देखिए जरा f of minus x that is 1 minus x, x plus एक्स स्क्वायर है, माइनस रखूंगा तो भी सेम आएगा, प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो एफ ऑफ माइनस एक्स, इट्स वेरी सिंपल, इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। सो दिस इज एन इवन फंक्शन, एक इवन फंक्शन है, एक इवन फंक्शन है। चलो एक पी वाई क्यू है 2017 एनडीए, एफ एक्स इज इक्वल टू mod x minus x cube, mod x minus x cube। We have to figure it out whether it is an even function or odd function। हमें ये चेक करना है कि क्या ये even function है या odd function है, that is the main thing। तो समझिए जरा, f of x, f of minus x mod of minus x minus minus x cube, so this becomes mod x plus x cube। so this is neither odd nor even, ना तो odd है ना ही even है, neither odd nor even, ना odd है और ना ही even है, ना odd है और ना ही even है। next one is again one more pyq, and that is 2019। fx is equals to log under root x square plus 1 minus x। again we have to check, again what we have to do, we have to check whether it is an odd function or even function। हमें इसको चेक करना है कि ये वाला जो फंक्शन हमें गिवन है, क्या ये ऑड फंक्शन है या क्या ये इवन फंक्शन है, ये हमें चेक करना है। ठीक है जी, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद दैट। वैसे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो लॉग फंक्शन होते हैं ना वो 99% ऑड फंक्शन होते हैं। यस, दैट इज ऑल्सो ह्यूज इंफॉर्मेशन। अगर आप प्रूफ करना चाहे तो प्रूफ कर सकते हैं। समझिए, अब मैंने x को माइनस एफ एक्स माइनस ऑफ एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो log, अब स्क्वायर है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये वाला जो माइनस एक्स है वो प्लस एक्स हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये तो ना तो इवन है ना ऑड है, क्योंकि इक्वल आ नहीं रहा है। अभी आप इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। जब आप इसको रेशनलाइज करेंगे तब ये बिल्कुल उसी फॉर्म में आ जाएगा।
I'm doing it here, and that is log x square plus 1 plus x multiply log x. Oh, my mistake. X square plus 1 minus x square plus 1 minus x. So this is log, now see, a plus b, a minus b. So this will be a square minus b square upon x square plus 1 minus x. This x square will get cancelled. We are just left with log 1 over under root x square plus 1 minus x. उसके बाद क्योंकि 1 log 1 is 0, I can write it log a upon b as log a minus log b. In the same way, log 1 minus log under root x square plus 1 minus x. Log 1 is 0, so we are just left with x square plus 1 minus x, which is nothing but minus of fx. तो yes, log x is an odd function. जो हमारे पास log x है, log के फंक्शन जो होते हैं वो 99% odd functions होते हैं. जो log के functions होते हैं 99% they are odd function. वो odd function. चलिए let's move further and discuss some more. Guys, if you are new to the channel, don't forget to subscribe it, like the video, share the video, and if you want to give any advice, pin down in the comment so that I could implement it as soon as possible. Chaliye, next one is one last question, then we'll move to the property. Example hai fx is equals to log 1 minus x 1 plus x 1 minus x 1 plus x. ठीक है जी, ये भी ऑड ही आएगा क्योंकि लॉग के जो फंक्शंस होते हैं वो ऑड होते हैं, 99% ऑड, और 99% बहुत बड़ी मेजॉरिटी. कोई फंक्शन होगा जो इवन आएगा. तो चलो सबसे पहले f ऑफ माइनस एक्स बिकम लॉग 1 माइनस एक्स यानी कि 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स. अब f ऑफ x बनाना है उसको, तो क्या करूंगा? ऑफ कोर्स आई विल reciprocate the numerator and denominator and taking -1 there. तो f of minus x आपके पास कितना आ जाएगा? log -1 बाहर आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है. तो माइनस log 1 minus x 1 plus x which is minus f of x, जो माइनस f of x के इक्वल होगा. सो लॉग के जितने भी फंक्शन है ऑल आर ऑड. अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की. प्रॉपर्टीज क्या क्या है? अगर आप दो इवन फंक्शन को ऐड करते हैं, इवन प्लस इवन, तो आपको जो फंक्शन मिलेगा वो इवन ही मिलेगा. अगर आप दो इवन फंक्शन को ऐड करते हैं तो आपको जो फंक्शन मिलेगा वो इवन ही मिलेगा. एक्स स्क्वायर प्लस x4 इवन ही मिलेगा. मेरे पास fx इज इक्वल्स टू ये है, जब मैं f ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करूंगा तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का 4 क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस x4. दूसरा ऑड प्लस ऑड, अगर आप ऑड को ऑड में ऐड करते तो ऑड ही आएगा. x प्लस एक्स क्यूब. f of x is this, तो f of माइनस एक्स कितना? माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स का क्यूब कितना? माइनस एक्स क्यूब, माइनस कॉमन ले लो, x प्लस एक्स क्यूब कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ fx. तीसरा, अगर आप ऑड प्लस इवन करते हैं या
इवन प्लस ऑड करते हैं तो जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी नीदर इवन नॉर ऑड, ना तो इवन आएगा और ना ही ऑड आएगा। ठीक है जी, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये थी एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। सब्ट्रैक्शन में भी सेम ऐसे ही होगा, सब्ट्रैक्शन में भी सेम ऐसे ही होगा, ना तो इवन आएगा और ना ही ऑड आएगा, दैट इज फॉर श्योर। सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही होगा, ना तो इवन आएगा ना तो ऑड आएगा। चलिए सब्ट्रैक्शन के बाद बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। इफ आई टेक द प्रोडक्ट ऑफ इवन इंटू इवन, एक्स स्क्वायर एक्स फोर एक्स सिक्स, एक्स स्क्वायर एक्स फोर एक्स सिक्स, कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, समझ रहे हैं आप, कॉस एक्स सीकेंट एक्स वन, वन को भी एक इवन फंक्शन आप मान सकते हैं। तो इवन इंटू इवन इज नथिंग बट इवन, ऑड इंटू ऑड, हाँ ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ऑड इंटू ऑड, एक्स क्यूब इंटू एक्स, तो क्या बन जाएगा आपके पास, ऑड ही रहेगा वो। नो 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 नो, ये इवन हो जाएगा, दिस विल बी इवन, ऑड इंटू इवन, ऑड इंटू इवन इज इवन इंटू ऑड, क्या रह जाएंगे ये ऑड, एंड डिवीजन, इवन डिवाइड बाय इवन इज इवन, odd divide by odd is even, even divide by odd is odd, odd divide by even is even. No no no, odd. These are some properties, these are some properties. Next thing is if an odd function इज स्क्वायर्ड, अगर एक और फंक्शन का स्क्वायर कर दें, इट बिकम्स इवन, तो वो इवन बन जाता है। जब हम एक और फंक्शन का स्क्वायर करेंगे तो वो इवन बन जाता है, जब हम एक और फंक्शन का स्क्वायर करेंगे तो वो इवन बन जाता है। सेकेंड थिंग, द ओनली फंक्शन which is both even and odd, एक ऐसा फंक्शन जो इवन भी है और ऑड भी है, दैट इज जीरो, जीरो ओनली। देखो जीरो को क्या है ना, जीरो को आप इवन भी बोल सकते हो ऑड भी बोल सकते हो, हमें पता नहीं है ना जीरो किस वजह से आया, समझ गए ना। तो माइनस जीरो भी जीरो प्लस जीरो भी जीरो है। थर्ड, द डेरिवेटिव of even function is odd and derivative of odd function is even। ये भी बात उतनी सच है, इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ऑड होगा, ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट थिंग इज, कभी बार पूछ भी लेते हैं, जैसे अगेन PYQ है 2018 का, उसमें पूछा गया था कि fx is an even function, if fx is an even function which of the following, then and also fx not equal to 0, then which of the following is correct। कुछ आपको 4-5 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से यू हैव टू आइडेंटिफाई कि विच वन इज करेक्ट। जैसे ऑप्शन 1, f डैश x इज
even. Option B, f dash x is odd. Option C, maybe even or odd, और D, कांस्टेंट फंक्शन. मैंने अभी अभी आपको बताया है, मैं पॉइंट थोड़ा सा और क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस पॉइंट का मतलब क्या है. जब आप एक इवन फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हो तो वो ऑड कैसे बढ़ता है. देखो, जब हम ना डेरिवेटिव लेते हैं किसका, यहां कहता हूं x की पावर n का, तो वो हो जाता है nx n माइनस, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे 2x आएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करोगे 3x स्क्वायर आएगा. ये और इवन है, ये ऑड हो गया, ये ऑड है, ये इवन हो गया, तो वो बदल जाता है. तो यहां पर जो है ऑड फंक्शन आएगा. f डैश x विल बी ऑड फंक्शन. f डैश x जो हमारे पास है वो ऑड फंक्शन है, ना कि इवन. चलिए जी, नेक्स्ट थिंग इज, कुछ और प्रॉपर्टीज है. देयर आर सम मोर प्रॉपर्टीज and I'm writing them here. If fx plus f of x plus f of minus x equal to 0, अगर f of x plus f of x minus x 0 है, इसका मतलब fx is odd function. fx जो है वो odd function है. Next point, fx minus of minus fx is equal to 0, then fx is even function. तब fx जो है even function है. तो it depends कि फंक्शन किस तरह का है. मैंने ऑड फंक्शन ले लिया, x ले लिया, तो x प्लस ऑफ माइनस एक्स 0. मैंने x स्क्वायर ले लिया, x स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर 0. तो अगर वो उनका एडिशन 0 आ रहा है तो वो ऑड फंक्शन है, अगर सब्ट्रैक्शन 0 आ रहा है तो इवन फंक्शन है. That is the point. Next thing is graph of even function is symmetric about y-axis. And the next is graph of odd function is symmetric about x-axis. जो इवन फंक्शन है उसका ग्राफ y एक्सिस के जो है अराउंड सिमेट्रिक होगा. कैसे? समझिए, y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होगा. अगर मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो मेरे पास ग्राफ जो है कुछ ऐसा आएगा, ऐसा आएगा ग्राफ. और अगर मेरे पास y इक्वल टू एक्स है तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ऐसा. ठीक है जी. तो ये आप याद रखें, y इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एक्स, दैट इज सिमेट्रिक along y एक्सिस. ये इवन फंक्शन के लिए है, ये ऑड फंक्शन के लिए है, ये ऑड फंक्शन के लिए है. नेक्स्ट थिंग इज, एक और क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन इवन ऑड के लिए, एंड दैट इज इफ fx is log x plus 1 plus x square, then which one of the following is correct? Which one of the following is correct? इनमें से कौन सा सही है ये हमें बताना है. fx plus f of minus x equal to 0, a. fx plus f of minus x equal to 0, a. f of x minus of f of minus x equal to 0, b. c है 2fx
is minus fx, and the last one is fx minus fx 2f of minus x. दैट इज द थिंग, सॉरी दैट इज द क्वेश्चन जो हमने समझना है, जो हमने करना है. ठीक है जी. तो चलिए जी, लेट्स स्टार्ट विद दैट. अब देखिए लॉग फंक्शन है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज अ लॉग फंक्शन एंड व्हेनेवर देयर इज लॉग फंक्शन इट इज ऑलवेज ऑड. हमेशा ऑड होगा. आप प्रूव कर सकते हैं. मेरे पास आएगा माइनस एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर. उसके बाद मैं रेशनलाइज कर दूंगा. रेशनलाइज करने के बाद मेरे पास बचेगा इसी का नेगेटिव पार्ट. तो जब ऑड फंक्शन है एडिशन जीरो होगा. सो देखते ही पता चल रहा है. जो क्वेश्चन पूछा मैंने आपको प्रॉपर्टी में बता दिया. जो क्वेश्चन पूछा है मैंने आपको प्रॉपर्टी में बता दिया है. तो ए इज द करेक्ट आंसर. ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है जी. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने लिया था इवन और ऑड फंक्शन का. आई होप थिंग्स गेट क्लियर. मैं एक और आपको बात बता देता हूँ. इंटीग्रेशन में जब इंटीग्रेशन कराऊंगा तो वहां पे भी हम एक डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज करते हैं. एफ एक्स डी एक्स दैट इज माइनस ए टू ए 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स और 0. ये कब होता है? जब फंक्शन इवन हो. ये कब होता है? जब फंक्शन ऑड हो. तो वो पता कैसे लगाते हैं? वो ऐसे लगाते हैं जो लेक्चर हमने आज आपके साथ डिस्कस किया है. इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल so that I could be motivated to do more and more good quality content for you, and share it with your friends as much as you can so that everybody will get benefited. एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं फिर से स्ट्रेस दे रहा हूँ इस बात पे. एजुकेशन बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी यू हैव टू ग्रो इन एवरी सर्कमस्टांसेस, एंड इफ यू वॉन्ट टू ग्रो वेल you should keep educating yourself. It doesn't matter wherever you are in your life. आप कहीं पर भी हैं, ठीक है. खुद को एजुकेट करते रहिए. नॉट अपार्ट फ्रॉम दिस, वैसे भी बात कर रहा हूँ. सो विद दैट दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड. थैंक यू सो मच. जय हिंद.